Hello students, welcome to Sriji Public School online classes, and in today's video we shall cover the merits as well as demerits of government company in our third chapter, that is private, public and global enterprises. So let's discuss the merits first of all. The very first merit of government company is administrative autonomy. As we discussed in the last video that a government company is relatively free from the political interference, political disturbance. There is no much disturbance from the politicians and government officials. So due to that, government company can operate its activities, can function its activities without any disturbance, without any political pressure, without any political interference. So let's read it out. Government company is free from political interference. It can function smoothly without any political disturbance. तो ये बिना किसी डिस्टरबेंस के, कोई पॉलिटिशियंस वगैरह ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं करते हैं गवर्नमेंट कंपनी में, तो ये फ्रीली अपना काम करती है, कोई इसमें दखलंदाजी नहीं है मिनिस्टर्स की. सुटेबल चेंजेस कैन आल्सो बी मेड व्हेनेवर रिक्वायर्ड. तो सुटेबल कोई चेंज करना हो तो वो भी बिना किसी मिनिस्ट्रियल सैंक्शन के, परमिशन के, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो इजिली अमेंडमेंट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं. तो एज ए कंक्लूजन इफ यू टॉक, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी मीन्स उसे ऑपरेट करने की, बिजनेस को चलाने की आजादी है डायरेक्टर्स को, एम्प्लॉइज को, गवर्नमेंट कंपनी के को, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है पॉलिटिकल साइड से. Then a second merit is a greater flexibility. As we discussed earlier, there is no political pressure, and government company is managed, financed and audited like any private sector company. So it can enjoy the freedom like changing any decision, to modify any decision. So there is a greater merit of flexibility. Mean to say कोई change अगर करना है तो वो easily किया जा सकता है. Government company is managed, financed and audited like any private sector company. So there is greater flexibility in decisions. Decisions can be modified without any ministerial sanction. तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कोई चेंज वेंज करना हो तो वो इजिली किया जा सकता है. तो कोई मिनिस्ट्रियल सैंक्शन की जरूरत नहीं होती, कोई कहीं से परमिशन की जरूरत नहीं होती. कोई चेंज करना है तो वो इजिली चेंज किया जा सकता है, कोई भी डिसीजन मॉडिफाई किया जा सकता है. तो फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे. नेक्स्ट वन इज efficient staff. Government company have their own rule regulation regarding recruitment as well as remuneration of staff. It can give high salary, high perks, perks with benefits like education allowance दे दिया, फ्री अकोमोडेशन दे दिया, आने जाने की सुविधा दे दी, बसेज वगैरह की. तो वो पर्क्स बोलते हैं उनको. तो सैलरी वगैरह, पर्क्स वगैरह और बेनिफिट्स वगैरह सर्विसेज दे सकती है अपने एम्प्लॉइज को, उनको क्वालिफाइड एम्प्लॉइज हायर करने के लिए. तो क्वालिफाइड स्टाफ यहाँ पे होता है, एफिशिएंट स्टाफ होता है. पढ़ते देखिए और इसको क्लियरली. Government company have their own rules and regulations regarding recruitment and remuneration of staff. Civil service rules are not applicable on government company. तो जो सरकारी सर्विस के नियम हैं वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होते. गवर्नमेंट कंपनी के अपने नियम होते हैं रिक्रूटमेंट करने के रिगार्डिंग भी एम्प्लॉइज की, और उनका रेमुनरेशन डिसाइड करने के रिगार्डिंग भी. इट कैन प्रोवाइड हायर सैलरी, पर्क्स एंड फैसिलिटीज टू हायर एफिशिएंट स्टाफ. तो बढ़िया स्टाफ को हायर करने के लिए, रखने के लिए बढ़िया सैलरी, बढ़िया पर्क्स, मिंटू से और बेनिफिट वगैरह सैलरी के अलावा और जो दूसरे बेनिफिट्स हैं वो दे सकते हैं, सर्विसेज दे सकते हैं बढ़िया स्टाफ हायर करने के लिए. तो यहाँ पे बढ़िया स्टाफ होता है, ये फायदा हो गया, मेरिट हो गई. एंड फोर्थ मेरिट पॉइंट इज क्विक डिसीजंस. देयर इज नो एनी प्री सैंक्शन ऑफ एनी मिनिस्टर और एनी parliament for taking decisions. Directors of company, board of directors we also can say, take themselves the decisions. So there is no need of sanction while taking decisions. Due to that quick decisions are possible. कहीं किसी से डिस्कशन वगैरह नहीं करना है, डायरेक्टर्स को खुद ही डिसीजंस लेने होते हैं. कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन हो तो उसमें जरूर जो शेयर होल्डिंग है, शेयर होल्डर्स है, उनकी मीटिंग वगैरह बुलानी पड़े. जो नॉर्मल डिसीजन है वो जल्दी वो ले सकते हैं बिना किसी मिनिस्टर की सैंक्शन की, बिना किसी परमिशन के. तो क्विक डिसीजन एज ए रिजल्ट पॉसिबल है. यहाँ पे ये बेनिफिट हो गया. इन गवर्नमेंट कंपनी क्विक एंड फास्ट डिसीजन आर पॉसिबल. देयर इज नो नीड टू डिस्कस विद एनी मिनिस्टर और एनीवन एल्स. तो किसी के साथ, किसी मिनिस्टर या किसी और के साथ डिसीजन लेने के लिए डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टेक ऑल डिसीजन. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन लेते हैं. सो फास्ट डिसीजन, क्विक डिसीजंस
which are essential for the successfulness of a business can be taken in government company. The last point of merit is collaboration. Government company can collaborate with any private company, private organization, and can avail the benefits of that organization. कभी बार क्या होता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई टेक्निक हो सकती है, क्वालिफाइड स्टाफ हो सकता है, और मैनेजेरियल एफिशिएंसी हो सकती है मैनेजमेंट में वहां की, तो उसके फायदे उठा सकती है गवर्नमेंट कंपनी कोलेबोरेशन के साथ. क्यों? क्योंकि मैक्सिमम 49% की प्राइवेट ओनरशिप यहाँ पे अलाउड है. तो गवर्नमेंट कंपनी 49% तक प्राइवेट किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके, शेयरिंग करके, तो उसके जो बेनिफिट्स है कंपनी की वो शेयर कर सकती है. उसकी कोई टेक्निक है, कोई और कोई नॉलेज है, मैनेजमेंट स्किल्स हैं, ठीक है, लाइक कोई भी बेनिफिट है उसका अवेल कर सकती है. तो करते हैं इसमें एक बार थोड़ा सा. गवर्नमेंट कंपनी कैन टेक ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज. इट कैन पॉसिबल थ्रू कोलैबोरेशन. कोलैबोरेशन में पार्टनरशिप में ज्वाइंट में काम करके with private enterprise. It can avail benefits like techniques. कोई बढ़िया टेक्निक है उसका फायदा उठाएगी फिर कोलैबोरेशन होने के बाद. एफिशिएंट मैनेजमेंट कई बार प्राइवेट वालों के साथ बढ़िया होती है, प्राइवेट वालों के पास, तो गवर्नमेंट कंपनी भी उस मैनेजमेंट का फायदा उठाएगी मिलजुल के फिर. और कंट्रोलिंग बढ़िया होती है प्राइवेट वालों की अपने स्टाफ पे, एक्टिविटीज पे, तो वो चीज भी बेनिफिट उठाती है फिर गवर्नमेंट कंपनी मिलके. तो कोलैबोरेशन करके बहुत सारे बेनिफिट गवर्नमेंट कंपनी को प्राइवेट कंपनी से मिलते हैं. सो दीज वर द मेरिट्स. इन नेक्स्ट सेगमेंट वी शैल डिस्कस द डिमेरिट्स. थैंक यू वेरी मच. Now we shall cover the demerits of government company. So let's discuss the demerits. The very first demerit of government company is autonomy on paper only. As we earlier discussed in the features as well as in merits, that a lot of flexibility and powers are given to government company, but in actual practice those powers and flexibility are on paper only. In actual practice, actual freedom and autonomy is not there. That is for name's sake. नाम की है सिर्फ जो फ्लेक्सिबिलिटी की बात कही गई है, फ्रीडम की बात कही गई है डिसीजन लेने की. इन एक्चुअल प्रैक्टिस इज ए लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम पॉलिटिशियंस एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इज देयर. तो बहुत सारे डिस्टर्बेंस रहता है गवर्नमेंट का, जो पॉलिटिशियंस का, गवर्नमेंट ऑफिसर्स का. तो जो फ्रीडम की बात कही गई है, फ्लेक्सिबिलिटी की बात कही गई है, वो सिर्फ नाम की है, एक्चुअल में बहुत डिस्टर्बेंस रहता है. तो ये है freedom and flexibility of government companies treated theoretically only. On paper we can say, for name's sake we can say, नाम की है, तो actual में नहीं है. In actual practice a lot of political and government disturbance is there. तो असल में बहुत सारा political और government officials का disturbance रहता है. Politicians think government company their own property. तो अपनी private property समझते हैं politicians government company को, ministers, and try to run government company according to their own wish. तो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते हैं. तो जो फ्लेक्सिबिलिटी की बात कही गई है, ऑटोनॉमी की बात कही गई है, वो एक्चुअल में कहीं नहीं दिखती. सो ये प्रॉब्लम रहती है. नाम की फ्लेक्सिबिलिटी है, नाम की ऑटोनॉमी है, एक्चुअल में नहीं है. सो सेकंड डिमेरिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज लैक ऑफ इनिशिएटिव. ऑफिसर्स और वी कैन से डायरेक्टर्स, मैनेजर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी गेट देयर फिक्स्ड सैलरी ओनली. They don't get any extra benefit from the profits that government company earn. Profits of government company are goes to the government treasury. So there is always lack of initiative for managers and directors for good efforts. तो एक प्रॉब्लम रहती है, बढ़िया एफर्ट लगाने के लिए कोई अलग से इनिशिएटिव नहीं मिलता, बेनिफिट नहीं मिलता. तो पढ़ते हैं इसको थोड़ा. गवर्नमेंट कंपनी डो नॉट मोटिवेट देयर स्टाफ बाय ऑफरिंग एक्स्ट्रा बेनिफिट्स. तो कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं देती, मोटिवेट नहीं करती स्टाफ को, लाइक अदर प्राइवेट कंपनी. दूसरी प्राइवेट कंपनी अपने स्टाफ को अट्रैक्ट करती है, मोटिवेट करती हैं, उनको बहुत सारे बेनिफिट्स देती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज देती हैं. गवर्नमेंट कंपनी ऐसा कुछ नहीं करती. देयर इज ऑलवेज लैक ऑफ इनिशिएटिव फॉर गुड एफर्ट्स मेड बाय स्टाफ. तो लैक ऑफ इनिशिएटिव इज ऑलवेज देयर. कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं देती उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए. तो ये एक प्रॉब्लम रहती है, इनिशिएटिव्स की कमी रहती है. जो मेरिट्स में हमने बात की थी वो कोई बात आ जाता है, दैट इज फॉर नेम सेक ओनली, एक्चुअल में कोई बेनिफिट नहीं मिलते. एंड नेक्स्ट डिमेरिट इज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. A lot of political and ministerial interference is there which disturb the proper functioning of company. So lot of disturbance is there from politicians and ministers side. So this is the demerit, greatest demerit.
Government companies are treated as personal property of ministers. So a lot of interference is there by ministers and leaders. तो प्राइवेट प्रॉपर्टी समझते हैं अपनी, वो बहुत सारी डिस्टर्बेंस लीडर्स की तरफ से, मिनिस्टर्स की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से रहती है, जो स्मूथ फंक्शनिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करती है कंपनी की. एंड द लास्ट डिमेरिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव. In board of directors, government nominate their representative, which try to please the leaders, please the ministers, and please the government officials as well. They don't take interest in the efficiency and prosperity of company. तो कंपनी की ग्रोथ में, एफिशिएंसी में कोई उनका ध्यान नहीं होता. जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट किए हैं, नॉमिनेट किए हैं, वो जस्ट गवर्नमेंट लीडर्स का काम करने में लगे रहते हैं, उनको खुश करने में लगे रहते हैं, उनकी आवभगत में लगे रहते हैं. तो ये प्रॉब्लम रहती है, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो प्रॉपरली काम नहीं करते. Board of directors of government company include government representatives. They always try to please government officers, ministers, and leaders. They don't care about efficiency and prosperity, we also can say, of a company. तो efficiency, prosperity के बारे में कुछ नहीं सोचते वो कंपनी की. वो जस्ट जो नेताओं को खुश करने में लगे रहते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को खुश करने में लगे रहते हैं अपने बेनिफिट के लिए. सो प्रॉब्लम रहती है रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से भी. So these were the demerits of government company. Thank you very much for watching. Have a nice day.